नमस्कार, आप देख रहे हैं वारदात इंडिया न्यूज। साथे ट्रैवल इनसाइट की ओर से आयोजित प्रेस मीडिया ब्रीफिंग में पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान साथे के मंच से ट्रैवल इंडस्ट्री के ग्लोबल नेटवर्क, बिजनेस अवसरों और भारत के बढ़ते टूरिज्म मार्केट पर प्रकाश डाला गया। वहीं महाराष्ट्र टूरिज्म ने राज्य में पर्यटकों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि महाराष्ट्र में बेहतर कनेक्टिविटी, आधुनिक होटल, होम स्टे, ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम, प्रशिक्षित गाइड और सुरक्षा यात्रा माहौल उपलब्ध कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस दौरान महाकुंभ को लेकर भी विशेष जानकारी साझा की गई। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष ट्रैवल पैकेज, यातायात व्यवस्था, हेल्पलाइन सेवाएं और सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया गया ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। महाराष्ट्र पर्यटन का कहना है कि राज्य प्रकृति, संस्कृति और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर यह ब्रीफिंग पर्यटन क्षेत्र में कई नई संभावनाओं और बेहतर व्यवस्थाओं का संकेत देती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। Good morning, everyone. Thank you, Yogesh. When I heard you were already talking about ACPC and the association, so he had already said what he wanted, and like it was a very profound expression of the partnership which he mentioned for the last 3 years. But you see, like everybody is talking about SATE in 3 years, and definitely we did see a lot of value in it, in associating inbound and outbound together. And the idea is to make it as world's biggest show for travel in India. And that's why you find APP as an initiative of Ministry of Commerce, Government of India. But that doesn't mean that it is the role of only Ministry of Commerce. All of us sitting over here are synergizing our effort in promoting inbound tourism along with outbound tourism, so that we create value for the industry here and also contribute to the economy. We also understand that inbound tourism requires a huge impetus. We have yet not reached the pre-COVID period data in terms of the inbound travelers to India. And this is an attempt. For the last 3 years, we are trying our best. Ministry of Commerce is coming up with a lot of support in terms of branding. So you'll be hearing very soon about certain branding campaign in global market. This year we are positioning ourselves, Atithi and SATE, together not only for expression, but for networking and bar selling, and more value addition to everyone involved with that. And in that, I believe you all need to see the B2B area as well in hall number 1. And we do wish to have more and more participation from the entire segment of the industry. Those who are the part of the larger ecosystem. You mentioned about the ecosystem, and I think this is the right time, right platform to strengthen that relation of having a much better, robust ecosystem and the interrelation between all the elements of the ecosystem. So thank you, Yogesh, for providing this opportunity to partner with Informa. Thanks, Pamari, for all the branding efforts you have taken. And thanks to all my colleagues as well, who put it together at the very last moment, of course, when they are approval from the ministry. Thank you. Both in the hospitality as well as in the travel sectors. I think there is a concerted effort, and there's actually a concerted effort from even the associations to have policies in place which will ensure that this sector has a smooth going forward. One very important thing which has been on the cards and we have always been asking for is an industry status for this sector, and not to be known as a sector but to be known as an industry. I'll let the Vice Chairman of FAITH touch on the step being taken by FAITH in this regard. Thank you, Abbas. Just yesterday, to share with all of you, well, challenges will remain, but I'd like to share with all of you that just yesterday, FAITH had organized a meeting with the
Honorable Tourism Minister of India, Shri Gajendra Singh Shekhawat ji, and the entire tourism top brass of the country. We had all 11 associations of faith. We had a very productive meeting, so I think the intent is there and we are all approaching. I think the country realizes the importance of the sector and we are all going about it. We are leaving no stone unturned to ensure that we grow robustly and in a sustainable manner. Thank you. I'd like to give you the participation of the private sector blending with the government does not exist in India. I have an example of Mr. Sakin Gursu. I would request the esteemed media, if you have time, and please try and interview him. In my opinion, it's one of the outstanding model associations of travel and tourism in the world. He's been the Secretary General of an association called TURSAP in Turkey. They have 16,000 companies as members. They have 25 regional offices. They have 300 plus staff. Their annual membership fee is $800. You cannot be a recognized tourism operator in your country unless you are a member of TURSA. They participate with the government empowers them, and whenever Turkey needs more tourism, they are more active than the government, than the authorities. I think that is the trend India needs to take. We have a lot of associations, fantastic. We have an outstanding apex body called Faith, but that passion to work, to be working for the country because you are empowered by the government, I see a huge setback there. It's not happening. We are meeting, but we don't take our actions for it. For organizing this event every year for the last 30 years now. I feel everything is very well organized this time. From the entry to everything, signage, all are in good shape this time. And please keep this up. Everything can change, you can better it up. But as of now, everything is good. As my colleague said, outbound is doing well, there are a lot of outbounds. But SATA is playing a very major role along with SCPC to get inbound into India, which is the need of the hour today. The aircrafts go full from here and they do not have people coming in, then there will be a problem again. Therefore, we have to keep this balance of inbound coming in. The number of, I think, 60 countries are participating. There are foreigners. I've seen a couple of them roaming around there. There are people here. And if we showcase our products to them, I think they will be able to promote our country very well, on which Sunday is doing the level best. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ये अभी प्रदर्शनी एग्जीबिशन हुआ है साटे 2026, इसका मेन मोटिव क्या है? हमारा मोटिव ये है कि महाराष्ट्र में जितना एक्सप्लोर होना चाहिए था अभी तक एक्सप्लोर हुआ नहीं है। हमारे पास वेस्टर्न घाट है, बुद्ध लेनीज है, कोस्टल एरिया है, शिवाजी महाराज के बहुत जो हेरिटेज है उसका, लेकिन वो जिस तरह से इंडिया में जितना टूरिस्ट हमें आने चाहिए एक्सप्लोर होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। इसलिए हमारी कोशिश ये रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ आके हम महाराष्ट्र के बारे में लोगों को जितना बताए और हमारे वेलकम करेंगे तो उतना ही हमारा फुटफॉल बढ़ेगा और लोगों को भी तो एक्सपीरियंस मिलता है जो ट्रैवल का वो अच्छी तरह से महाराष्ट्र में मिलेगा। इसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे जो आपको हॉस्पिटलिटी देने का है। तो इसलिए हम यही आए हैं कि आप महाराष्ट्र में आइए, एक्सप्लोर कीजिए, फील कीजिए, स्पिरिचुअल रहेगा या हॉली रहेगा या फिर हेरिटेज का रहेगा, तो आपको सब पार्ट का स्पेस वहाँ मिलेगा। इसलिए हम ऑल टूरिस्ट को भारत से ही और इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी वेलकम करते हैं महाराष्ट्र में। इसलिए इसी वजह से हम यहाँ साटे में आए हैं। सर साटे से जो है महाराष्ट्र टूरिज्म से आपको क्या बेनिफिट मिल पा रहा है सीधा से, जैसे टूरिज्म रिपोर्टर्स होते हैं टूरिस्ट के होते हैं, है ना? इसके 3 तरह के फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जो अदर जो स्टेट्स है उनसे भी हमारी पहचान होती है, वो कोलैबोरेशन होता है
दूसरी बात है कि बी टू बिजनेस यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र से भी स्टॉल्स लगे हैं और अदर स्टेट्स के भी स्टॉल्स लगे हैं, तो उनसे भी हमारा इंटरेक्शन होता है और उनको हम प्रमोट कर सकते हैं हमारा जो प्रोडक्ट है उसके लिए। और तीसरी बात है कि हमारे जो वहाँ पे जो पोर्टल है जो गवर्नमेंट का है, तो उसको हम ऑन बोर्ड कर रहे हैं उन सबको। तो क्या होता है कि जो कॉमन पब्लिक के ट्रैवल्स होते हैं उनको रेडीमेड मिल जाएगा ऑनलाइन, बस यही फायदा हो रहा है। ट्रैवल एजेंट्स को सीधा फायदा यही मिल पाएगा सर। या श्योर। हॉस्पिटैलिटी को लेके महाराष्ट्र टूरिज्म क्या सुधार कर रहा है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एक्चुअली हमारे यहाँ जो सेंस होता है, जो हम फॉरेन में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का जो सिविक सेंस होता है हमारे का सिविक सेंस तो थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो हम अभी करें कि हमारे जब टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ के जो हमारे लोकल वेंडर होते हैं या स्टॉक होल्डर्स होते हैं, तो उनको जो कमी रहती है ट्रेनिंग की, वो हॉस्पिटल अच्छे करते हैं, लेकिन जो इंडियन टूरिस्ट होता है या वहाँ से साउथ का टूरिस्ट होता है, नॉर्थ टूरिस्ट होता है, तो हर अलग तरह से ट्रीट करना चाहिए। लेकिन वो उसका ट्रेनिंग के लिए हमने क्या है, अभी स्किल गैप एनालिसिस का हमने सर्वे किया है वर्ल्ड बैंक की मदद से, हमें वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है, तो स्किल गैप एनालिसिस हम कर रहे हैं। उसके बाद फुटफॉल प्रिंट उसका भी हम एनालिसिस कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम एक कोर्स बना रहे हैं जो स्टेक होल्डर्स के रहते हैं या हॉस्पिटल में जो सर्वेंट या सर्विसेज देते हैं उनको हम एक अच्छे से 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हमने अटैच किया है, उसको हम एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हॉस्पिटलिटी के जो ट्रेनिंग भी रहेगा अभी उसके हिसाब से हमारा जो लोगों का स्पेस रहेगा विजिटर्स का, वो आगे जाके धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा। हाँ, अक्सर देखा जाता है कि हम घूमने तो जाते हैं सर, लेकिन फिर हमारा अनुभव जो है वो कुछ और ही बयां करता है। बिल्कुल सही बात है। वो धीरे धीरे देखिए कोई हम परफेक्ट नहीं है, धीरे धीरे परफेक्ट की ओर जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरह से कि जो सॉफ्ट स्किल हमें डेवलप करनी चाहिए हमारे हॉस्पिटलिटी में, उसके लिए हम ट्रेनिंग अभी दे रहे हैं। इससे ज्यादा तो कुंभ मेला अभी है हाँ। महाराष्ट्र में, उसके बारे में आप कुछ बताइए सर। कुंभ मेला अभी ये तो 2 साल चलेगा कुंभ मेला हमारा, अभी तैयारी शुरू की है हमने। उसमें यह है कि जैसे अभी प्रयागराज में हुआ था तो हमारे आंखों के सामने वही उसका इवेंट है तो उतना बड़ा हुआ था, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उतना ही बड़ा हो और ये बहुत लंबा चलेगा। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे होली टूरिज्म होता है उसका एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए। और वैसे भी प्रभु राम जी का वहाँ ऊपर रहा था पंचवाटिका में, तो वो रामकाल पथ हम डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे। और जितने भी सर्किट्स है जैसे अजंता वेरूळ, गणेशेश्वर, शिरडी, वो सब नजदीक है। तो हम ऐसे सर्किट डाल रहे हैं कि जब कोई भी विजिटर या पिलग्रिम आता है वहाँ कुंभ मेले के लिए, तो वो सब वहाँ वो सब सर्किट देख ले और अच्छे से वो कम से कम 7-8 दिन वहाँ का सब घूम ले, फिर ले, एक्सपीरियंस कर ले। और उसके जो अभी 2-3 के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं अभी, क्योंकि जब बहुत बड़ा क्राउड आता है तो हमें उस तरह से सब तैयार रहना चाहिए, वहाँ टेंट सिटी होना चाहिए। सर इसके लिए कोई कार सेवा वगैरह भी आप लोगों की तरफ से रहेगा सर, महाराष्ट्र की तरफ से? कार सेवा जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि टूरिज्म में किसी तरीके का यात्री को कहीं दूसरी जगह शिरडी से और बॉम्बे जाना हो तो उसके लिए क्या आपका वो रहेगा? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन हम जो प्राइवेट हमारे वेंडर्स है जो ट्रैवल्स है उनके हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके लिए महाराष्ट्र शासन ने गवर्नमेंट ने एक अलग से एक कंपनी स्थापन की है जिसके शेखर में उसके प्रमुख है, तो वो सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन हम आपके बात ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसा कुछ फैसिलिटी दे सकते हैं कि अगर हम ही अरेंज कर दे कि आप जैसे नासिक आता कुंभ मेला आता है तो इससे यात्री को थोड़ा आसानी होगा, तो हम कोशिश करेंगे। आप बताइए। अभी हमने कुंभ के लिए एक स्पेशल कमेटी एस्टेब्लिश हुई है, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट इज द नोडल कांटेक्ट। एक सिंगल विंडो बन रहा है, तो प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी हम बुला रहे हैं टेंट सिटी एस्टेब्लिश करने को। ये वाला कुंभ वेरी स्पेशल होगा बिकॉज जो इलाहाबाद प्रयागराज का कुंभ हुआ था उसका कंप्लीशन कहते हैं जब तक नासिक का कुंभ नहीं होता तब तक उसका कंप्लीशन नहीं होता। तो हम इसके लिए बहुत अच्छा मार्केटिंग के अभी शुरू कर रहे हैं। अक्टूबर 26 में इसका फ्लैग ऑफ होगा, बट एक्चुअल कुंभ स्नान अगस्त 27 से होंगे। इट इज़ अ स्प्रेड आउट, तो ऐसा नहीं कि सारी भीड़ आएगी, बट हमने क्राउड मैनेजमेंट, कैपेसिटी मैनेजमेंट हम ऑलरेडी पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं। जैसे सर ने बताया एक अलग सी कमेटी भी है, और टेंट्स के लिए हम गवर्नमेंट ऑपरेटर्स प्लस प्राइवेट ऑपरेटर्स वी हैव क्रिएटेड SOPs कि कैसे टेंट्स बननी चाहिए। ये नहीं कि खाली जगह मिली वहाँ टेंट बनेगा। हमने वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट, इको फ्रेंडली, देन मोबिलिटी, वे साइड अम्यूनिटीज, ये सब किया है। बिकॉज नासिक एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ सिर्फ पंचवटी और त्र्यंबकेश्वर नहीं है, वहाँ अंजनेरी हिल्स है जहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था। फिर आजू बाजू में हमारे जवाहर करके है, वारली पेंटिंग है। सर ने जैसे बताया एक पूरा सर्किट बनता है अजंता एलोरा से, शिरडी से, सबसे।
सो इट इज़ अ वेरी प्लान्ड थिंग। तो ये भी हमें इस बार साटे में लोगों को प्रमोट करना है, वो हमारा एक उद्देश्य है कि लोग ये भी समझे कि हम कैसी तैयारी कर रहे हैं। असल में महाराष्ट्र ओनली स्टेट है जिसमें सी फोर्ट्स है। आप यहाँ सामने जो दिखते हो समुंदर के अंदर किले बने हुए, तो हमारा कोस्टल टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा प्लान है। तो हम हमारा हेरिटेज, हमारी नेचुरल ब्यूटी और हमारा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ये हम कर रहे हैं। और अभी हम एक कन्वेंशन ब्यूरो भी लॉन्च किए हैं। ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट कन्वेंशन ब्यूरो होगा जो माइस प्रमोट करेगा, और हम और कन्वेंशन सेंटर्स भी महाराष्ट्र में बना रहे हैं। सो होलिस्टिक है पूरा डेवलपमेंट। साटे को लेके महाराष्ट्र टूरिज्म की क्या अपेक्षाएं? साटे को लेकर साटे हैज बीन एशियाज बिगेस्ट ट्रैवल एंड टूर एग्जीबिशन। तो ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे हर साल हम आते हैं। इस बार हम थोड़ा सा पीछे है, अगली बार हम आगे आएंगे। साटे से हमारी अपेक्षा यह है कि साटे में थोड़ा सा जैसे क्राउड मैनेजमेंट और फिक्स्ड अपॉइंटमेंट्स की ज़रूरत है। थोड़ा अगर अपॉइंटमेंट शेड्यूल बन जाए, क्योंकि साटे इज द ओनली में ऐसे अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स नहीं होते, लोग विजिट करते हैं। नहीं, क्या हमारा टूरिज्म इतना एबल नहीं है कि हम बगैर साटे के भी अपने आप को ग्रो कर सकते? सर, ऐसा एग्जीबिशंस हर कंट्री में होता है। हमारे टूरिज्म का वो ये नहीं है। सारे स्टेक होल्डर्स को एक टाइम में एक प्लेटफॉर्म के नीचे लाना, इसीलिए इस ऐसे एग्जीबिशन, साटे जैसे एग्जीबिशंस वर्ल्ड ओवर होते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, इस बार महाराष्ट्र की थीम भी अनलिमिटेड रखी गई है, तो उसको देखते हुए आप कैसे अदर स्टेट से कैसे डिफरेंशिएट? So, because I am a proud Maharashtrian, I believe that our state is very, very unique. जैसे मैंने बोला, 12 we have 7 UNESCO heritage sites, 12 forts of Maratha Valor, समुंदर है, समुंदर के अंदर किले हैं, हेरिटेज है, बीच है। The longest coastline in the country belongs to Maharashtra, 852 kilometers of coastline. क्या नहीं है, मतलब एक डेजर्ट और स्नो छोड़ के हमारे पास सब कुछ है। प्लस हमारे पास कवरेज इतना, हमारा मतलब टाइगर्स, वाइल्ड लाइफ पार्क्स, बीचेस, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, everything we have. So I think we are a complete state and we are in the center of India. Mumbai gets the maximum international travelers. So I think हमारे लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि आप महाराष्ट्र को चूज करो। और फर्स्ट, जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर सारे फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, हमको फॉरेन टूरिस्ट को टूवर्ड्स महाराष्ट्र, अभी हमारा फोकस है कि हम इनबाउंड टूरिज्म भी इंक्रीज करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।